Shehzad Poonawalla is a lawyer, national spokesperson for the Bharatiya Janata Party, and a vocal advocate against dynasty politics in India. Known for his strong stance on democratizing political structures, Shehzadji has consistently worked to highlight and challenge entrenched family-based power systems in the Indian politics. His legal expertise and political insights make him a compelling voice in discussions on reclaiming civilization values through the legal and political framework. हमारे दूसरे स्पीकर हैं श्री सुधीर अग्रवाल जी। Shri Sudhir ji, a distinguished Indian court figure who has had a long-lasting influence on our nation's legal system, ladies and gentlemen. We invite you to join us in welcoming the distinguished Justice Sudhir Agarwal ji, whose name is a byword for judicial quality, honesty, and a strong dedication to justice. With a solid academic background, Justice Agarwal ji began his legal career after graduating with a science degree from Agra University in 1977 and a law degree from Meerut University in 1980. He was born on April 24, 1958. Enrolling as an advocate on October 5, 1980, he began his legal career by practicing tax law before progressively gaining knowledge of service and electricity conservation. Our next speaker is Shri B.K. Dubey ji. Advocate B.K. Dubey is a legal expert specializing in Indian politics and constitutional law. Practicing at the Supreme Court of India, he is also a respected mentor for judicial exam aspirants, offering guidance rooted in his profound understanding of the legal and political landscape. His expertise and insights provide a vital perspective on leveraging the legal framework to uphold and reclaim India's civilizational ethos. And the chair for this session, Shri Umendra Ratnu ji. Dr. Umendra Ratnu is a medical doctor and the founder of Nimiketam, a non-profit organization dedicated to the settlement of Pakistani Hindus in India. He is also an author and historian with his notable work Maharana's A 1,000-Year War for Dharma, which chronicles the heroic resistance of the Rajputs of Mewar in defending India's cultural and civilizational ethos. Through his book and activism, Dr. Ratnu highlights the legacy of Hindu resistance to centuries of invasions, offering a perspective that seeks to reclaim and celebrate India's historical narrative. शुरू करेंगे। सभी मित्रों को हमारे पवित्र राजस्थान की भूमि से हर हर महादेव। तो मुझे नहीं पता मैं इस लीगल पैनल में क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई जो है मुझे को यहाँ होना चाहिए था। मेरी जो आरंभिक हिंदू धर्म के प्रति जो मेरा यात्रा रही, उसमें एक मील का पत्थर था। यहाँ कितने लोग हैं जो शाह बहादुर जजमेंट के बारे में जानते हैं? हाथ उठा दें। बहुत उत्साहवर्धक है कि सभी को पता है। तो उस जजमेंट को जब मैं उस वक्त 17 साल का था, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, जिस दिन राक्षसी ताकतें इस देश के अंदर तांडव करेंगी, उस दिन इस देश की शासन व्यवस्था हमें नहीं बचाने वाली। ये सरेंडर है इस देश की शासन व्यवस्था का उन पाशवी शक्तियों के सामने। और लीगल एंगल से अगर हम बात करें कि कानून, सुप्रीम कोर्ट का एक कानून एनल किया गया ब्रूट मेजॉरिटी के द्वारा, प्रातः स्मरणीय श्री राजीव गांधी जी के सरकार के द्वारा। उसके पश्चात जो कानूनी दृष्टि से मैंने एक कानून देखा, जो वो था पीसीटीवी बिल। कितने लोग पीसीटीवी बिल के बारे में जानते हैं? हाथ ऊपर करें। Seriously? Nobody knows about PCTV bill? Full form. Prevention of Communal and Targeted Violence bill? ये एक ऐसा कानून इस देश में बनाया गया, इस देश की एक असंवैधानिक संस्था एनएसी के द्वारा, कि यदि इस देश में कहीं भी कुछ भी कानून
तोड़ा जाता है तो उसका दायित्व बहुसंख्यक समाज का होगा। तो जो एक धारणा बचपन से मेरी रही कि भारत एक शरिया संवर्धक राष्ट्र है, वी आर अ शरिया कंप्लायंट नेशन। हम यहाँ पर चारा है तो भाई को बढ़ाने के लिए आए हैं, गधे की तरह सुबह से लेकर शाम तक 20 बर्डन की तरह काम करते हैं और जजिया और चुकाते हैं। पीसीटीवी बिल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है, लेकिन और भी भयानक एक कानून जो अभी आजकल बिल्कुल चर्चा में है, और मैं बहुत लज्जा से ये बात स्वीकार करता हूं कि अपने आप को जागरूक हिंदू मानते हुए भी मुझे उस कानून के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक वीडियो नहीं देखा था, और वो है वक्फ बोर्ड कानून। अगर इस देश के अंदर 2013 के अंदर इस तरह का कानून पास हो सकता है तो हम सोच लें कि हम कहां खड़े हैं। सर्कस, बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, फॉरेन वेकेशंस, अब शादियां, बेटे की शादी में कितने करोड़ खर्च हुए। मैं अभी एक रोकाई की सेरेमनी में गया, 4 करोड़ रुपए उस रोकाई की सेरेमनी में। वो और क्या वो अजीब अजीब सी लड़कियां तितलियां बन के नाच रही थी वहां पर, और मैं तो वहीं कैलकुलेट करने बैठ गया क्योंकि एक पाकिस्तान के हिंदू को निकालने का मूल्य 8,000 रुपए महीने आता है, 8,000 रुपए आता है। मैं कह रही कि इस 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए अगर हमें मिला होता निमित्त एकम हमारी संस्था को, तो मैंने 1200 हिंदू पाकिस्तान से निकाल लिया होता। ये दुर्दशा इस समाज की कि आपकी पार्लियामेंट, आपकी संसद आपके खिलाफ कानून बना रही है और हम यहां सन्निपात, पैरालाइज्ड पड़े हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। और एक जो कानून अंतिम जिसके बाद में मैं पैनलिस्ट को न्योता दूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मेरे हृदय का और मेरे भाई जय आहूजा के हृदय का छाला, एन अल्सर इन बोथ आवर हार्ट्स। जीवन के 5 या 6 साल हमने लगाए लॉबिंग की, 5-5, 6-6 घंटे ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टरों की प्रतीक्षा में उनके वेटिंग लाउंज में घटिया किस्म के लोगों से स्मॉल टॉक करते हुए बिताए। फिर वो मीटिंगें हुई जहां पर ये निर्णय किया गया कि हाँ, पाकिस्तान के और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अविभाजित भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक कानून बनाया जाए। और मेरा परमात्मा जानता है, जय का परमात्मा जानता है वो कानून हमने कैसे किया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक विचार ये आया, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त किया जाए। कश्मीर में तो सशक्त कर लिया था हमने हिंदुओं को, दिल्ली की जहांगीरपुरी में हमने सशक्त कर दिया था हिंदुओं को, जयपुर जहां से मैं आता हूं रामगंज में सशक्त हो गए हिंदू, बामड़ बड़ी मकान खाली कर करके भाग रहे, मेवात में सशक्त हो गए जय हिंदू। और फिर ये चुनौती मेरी, अच्छा आपको सशक्त करना है ना, बोला बांग्लादेश में नरसंहार कर दीजिए, सशक्त करिए ना, करिए सशक्त। रोज बलात्कार हो रहे, रोज हत्याएं हो रही हिंदुओं की। तो उस नैरेटिव, उसके विरोध में बहकर भी महादेव की कृपा और परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई के प्रयासों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून इस देश में पारित हुआ। और उस दिन मैं ताली बजाने की बात बता देता हूं, क्योंकि उस दिन हमने निमित्तकम कार्यालय में, जहां पाकिस्तानी हिंदुओं का हमारा काम जयपुर में चलता है, हम खुशी से नाचे, हम खुशी से एक दूसरे के गले लग के रोए, हमने मिठाइयां बांटी, हमने दिवाली मनाई उस दिन, शायद दिसंबर का समय था। लेकिन उसके बाद क्या, इस देश में शाहीन बाग बिठाए गए और ये हिंदू समाज कहां था? ये सर्कसी हिंदू समाज कहां था? अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ कानून पारित किए गए, अमेरिका का हिंदू समाज कहां था? परिणाम यह है कि आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कट ऑफ डेट डाली गई है 31 दिसंबर 2014 की।
मुझे नहीं पता ये किसके कहने से डेट डाली गई है। क्या इसका अर्थ यह है कि 2014 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का, ईसाइयों का उत्पीड़न बंद हो गया है? तो शहजाद सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ये गति क्यों हुई, और क्या हम जैसे लोग जो अपना जीवन पाकिस्तानी विस्थापित अल्पसंख्यकों के लिए दे चुके हैं कोई आशा रखें? भाई देखिए, मैं अपनी बात विस्तार से तो रखूंगा, और हमारे बीच में एक नई प्रकार की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है, बुरा मत मानना। उसको मैं कहता हूं द आनंद रंगनाथाइजेशन ऑफ आर ग्रुप, और आनंद रंगनाथाइजेशन ऑफ आर ग्रुप इसमें यह है कि जिन कामों को 70 वर्ष में कभी हाथ में लिया नहीं गया, करने का बेड़ा नहीं उठाया गया, आज जब 370 धारा को कब्र में दफन करने का काम किया गया है, तब भी कुछ लोग कहते हैं कि जितना हुआ वो काफी नहीं है, आज भी हम शरिया स्टेट हैं। तो ऐसे आर्मचेयर क्रिटिक के लिए तो हो सकता है कि कोई भी चीज हासिल करने के बाद भी वो काफी ना हो, पर हमको पता रहना चाहिए कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, और संवैधानिक व्यवस्था में जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री प्रणालियां और चीजें हैं, उसके हिसाब से चीजें की जाती है। एक अब बोलेंगे कि कट ऑफ डेट क्यों है, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट में हुई है, मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, एक समय था कि इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करने की स्थिति में हम लोग आज नहीं थे। आज हम लोग इस स्थिति में हैं। आज एक ऐसी स्थिति भी थी कि महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्था आजम खान जैसा कोई व्यक्ति देखता था, और आज महाकुंभ संपन्न हुआ है 45 दिन में, तो 66 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे। आज 370 का नामो निशान हटाया गया है। आज जिस प्रकार से एक एक करके, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो हमारे अन्य सनातन के केंद्र हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन महाकाल लोक हो, एक के बाद एक सारी चीजें हो रही है। मैं जानता हूं कि हम लोगों में हमेशा से वो एक भावना रही है कि और तेजी से होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर क्या रह गया है उससे बदले आगे किस तरह से आगे और गति से बढ़ना है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोगों को विभाजित होना चाहिए, क्योंकि हमारे विरोधी तो यही चाहते हैं कि हम बटे, और बटेंगे तो मुझे लगता है बटने के लिए और बांटने के लिए बहुत सारे लोग उत्साहित रहते हैं। हम ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ। शहजाद जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि नाउ सिंस हम लोग बात करें रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन थ्रू लीगल लेन्स, आपके यूसीसी के ऊपर क्या ख्याल है? क्योंकि जहां तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी जाती है, यूसीसी की वजह से यहाँ पे एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अबाउट एवरीथिंग। तो जो रिलीजियस लॉज की वजह से या फिर कुछ पर्टिकुलर ही रिलीजियस लॉज इतने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोग्राफी प्रॉब्लम से लेके काफी कुछ यहाँ पे तकलीफें अपने देश को झेलनी पड़ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूसीसी? देखिए, सबसे पहले तो आजकल हमारे देश में एक नया ट्रेंड, एक पैटर्न शुरू हुआ है। कुछ लोग पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हैं, हम लोग आज सहयोग से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं, पर उन लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल अवधारणा क्या है? कि समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हमने अभी महाकुंभ में भी इसको हम कह सकते हैं एकता का महाकुंभ था। कोई किसी को ये नहीं पूछा था कि आप किस जाति से हैं, आप किस वर्ग से हैं, सभी लोग श्रद्धा और आस्था का स्नान कर रहे थे। तो इक्वालिटी ये अंबेडकर जी की, हमारे संविधान की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना का सबसे बड़ा कोई अगर उत्पीड़न कर रहा है, अगर इसके खिलाफ जा रहा है, तो वो है इस देश में ऐसी व्यवस्था होना जहां पर पर्सनल लॉ या रिलीजियस बेस्ड लॉ देश के संविधान के ऊपर। और हिपोक्रेसी देखिए आप, जो लोग यूसीसी की वकालत के खिलाफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए वो बोलते हैं,
वो वही जमात है, वो वही मंडली है जो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के साथ पूरी तरह से, उनको ये नहीं चाहिए कि अगर उन्होंने चोरी की तो हाथ कट जाए, अगर उन्होंने बलात्कार किया तो जो बलात्कार की सजा। अब इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। पर हां, जहां पर महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करना है, जहां पर महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाना है, वहां पर ये यूसीसी की वकालत करते हैं। 4 शादी करने का अधिकार होना चाहिए, 15, 12, 13 साल की बच्ची के साथ 60-65 वर्ष के व्यक्ति की शादी करने का अधिकार चाहिए। महिलाओं को वो अधिकार नहीं होने चाहिए जो लड़कों के होने चाहिए, जो मर्द के होने चाहिए। और वैसे तो ये लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिव वैल्यूज, इक्वालिटी, समानता, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, इन सारी चीजों की वकालत करते हैं। पर यही लोग हैं जो यूसीसी का विरोध करते हैं। दूसरी बात, क्या यूसीसी को संविधान में भारतीय जनता पार्टी डाली? क्या भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। उस समय पर संविधान के जो निर्माता थे उसमें तो कांग्रेस के लोग थे, अंबेडकर जी थे, के.एम. मुंशी, नेहरू जी। तो क्या जो आज संविधान की पॉकेट साइज एडिशन लेकर घूम रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि उनके दादा, परदादा, नाना, परनाना, इन लोगों के विचार जो है कचरे के डब्बे में आपने डाल दिए? तो ऐसा तो आकर बोलो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो नाम भी छोड़ो। विचार छोड़ा है तो नाम भी छोड़ो। वैसे नाम वैसे गांधी है, वो गांधी बन गया, पर नाम भी छोड़ो अगर विचार छोड़ रहे। तीसरी बात, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था, गोवा में लागू। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि हम करें तो चमत्कार और तुम करो तो गुनहगार। ये कैसी हिपोक्रेसी है? ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। और कांग्रेस पार्टी क्यों, किस राह पर चल पड़ी है, अभी इसका जिक्र भाई साहब ने किया। शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और वो शुरुआत होती है शाहबानो केस से। जैसे शाहबानो केस का वर्डिक्ट आता है, कट्टरपंथियों के दबाव में आकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और शाहबानो से लेकर आज शायरा बानो तक, जहां पर ट्रिपल तलाक का फैसला आया, वो पूरी श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि हर बार महिलाओं के अधिकारों का एक प्रकार से गला काटा गया है, उसको एक प्रकार से हनन किया गया है और कट्टरपंथियों को आगे रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार है। यह हमारी संवैधानिक कटिबद्धता है और इसको लागू करना यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और जिस प्रकार से जो भी नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी, हमने गारंटी दी थी कि 370 हटाएंगे, 370 हटा। हमने गारंटी दी थी कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। और आज हम ये गारंटी दे रहे हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होकर रहेगा, और उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो चुकी है और कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं वो दरअसल डबल स्टैंडर्ड्स वाले एक बीबीसी मंडली है, भड़काओ भाईजान कमेटी मंडली है, जो यूसीसी का विरोध करती है। और हम उनको केवल इतना पूछना चाहते हैं कि यदि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है तो आप बोलिए कि कल से हम, अब तो इंडियन पिनल कोड नहीं रहा, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, बीएनएस हो चुका है। आप बोलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो सजा शरिया में मुकर्रर है वही सजा हमको मिले। अगर ये कहने के लिए वो तैयार है असदुद्दीन ओवैसी, या अगर राहुल गांधी कहने के लिए तैयार है तो आकर डिबेट करें। अन्यथा इनका केवल एक ही मकसद है कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण में वो चाहते हैं कि देश के संविधान के खिलाफ जो है एक प्रकार से वो खिलाफ जाए, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो यूसीसी का विरोध करने की बात हो। और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की राजनीति को नकारने का समय आ चुका है। तुष्टीकरण के नाम पर महिलाओं के
जो अधिकार है उनका हनन नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी ढंग से आपने दिलीप जी आपको मैं इस डिबेट में लाना चाह रहा हूँ। राज्य व्यवस्था जनमानस के विरोध में नहीं जाती है, और जनमानस यदि राज्य व्यवस्था का साथ दे तो क्या कानूनी प्रक्रिया को लाना सरल हो जाता है। जैसे शाहबानों के समय पे पब्लिक प्रेशर के सामने झुककर जो कुछ हुआ, तो क्या आज हमारी जो आज शासन व्यवस्था, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने इतने सफल, क्या हिंदू समाज उनका साथ दे रहा है? क्या समाज साथ दे सकता है? और अगर नहीं दे रहा है या दे रहा है तो उसके क्या कॉनोटेशंस है, इसकी क्या आपकी समझ है इसके बारे में? मुझे लगता है कि इन विषयों पर मैं एक पूरी प्रक्रिया में 370 में 10 साल हमने काम किया, और एक नैरेटिव भारत में था, और वो नैरेटिव ये था कि 370 परमानेंट टाइप है, ये हर ये बिल्कुल ठीक है। और उसका कारण था कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ वेबसाइटें, तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेक्स्ट बुकें हैं उनमें सब में इसी प्रकार से लिखा है। तो अपनी समझ में जब पिटीशनें फाइल हुई, पिटीशन चूंकि सरकार बनने से पहले हमने फाइल कर ली थी, तो जब पिटीशनें फाइल हुई तो उसके साथ साथ एक बड़ा भारी द्वंद था कि देश का कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार ही नहीं था कि आप सफल हो जाएंगे। हम देश में जाते 400-500 लोगों के बीच में अपना विषय रखते और कहते ये इसका इंटरप्रिटेशन है, तो उस समय तो लोग ताली बजाते, लेकिन बाद में व्यक्ति कहता था ये बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, आप लोगों ने उठा तो लिया है, हो जाएगा क्या? अब जो उसके जिस्ट में गए, जब हम उसकी जेनेसिस में गए, तो जो आपने प्रश्न किया वो पीछे से नहीं, वो ये है कि समाज में इग्नोरेंस, मिसकॉन्सेप्शन, जो गलत सूचनाएं हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। और कैसे बैठी थी? आजकल आपके यहां कोई कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोग कम आते होंगे, लेकिन पहले बहुत आते थे। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि कश्मीरी शॉल बेचने वाले अब बहुत कम आते हैं। फिर ऐसा है क्या? हम हिमाचल में यूनिवर्सिटी में बैठे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे रहे थे, तो कुछ रिसर्चर्स खड़े हुए और उन्होंने प्रश्न पूछे। मैं चूंकि मंच पर बैठा था तो मुझे दिख रहा था कि उसने एक कॉपी खोली, उस कॉपी से उसने प्रश्न पढ़ा और वो बच्ची खड़ी हो गई और उसने प्रश्न पूछ लिया। तो चूंकि हम काम ही कर रहे थे तो हमने पूछा कि भाई बगल वाले से इसकी कॉपी देखो क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमें दिख रहा था मंच से, काफी ऊंचा मंच था, उसने कॉपी देखी और फटाफट पढ़ा। तो वही सेम जो क्वेश्चन उसने पढ़ा था वो उसमें लिखा था, और अगला क्वेश्चन मैंने कहा ये आने वाला है तो वो भी लिखा था। तो उन्होंने कहा ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ लिखे हैं। मैंने कहा इसके आगे भी लिखे होंगे। वो नहीं, वो आंदोलन था उनका। और वो कश्मीरी शॉल बेचने वाला आपके दरवाजे पर शॉल का पिटारा खोलता था। खोलने के बाद जैसे ही उसने कहा हम कश्मीर से आए, तो हमारे उद्गार, कश्मीर की चिंता हमें सताने लगी और उससे हमने पूछ लिया। और जैसे ही हमने पूछा तो उसने शॉल दिखाना बंद कर दिया और कश्मीर बताना शुरू कर दिया। और उसने कहना शुरू कर दिया आर्मी ये कर रही, वो ये कर रहे, वो भाई साहब ये कर रहे, वो भाई साहब ये कर रहे, वहां ऐसा अत्याचार चल रहा, वैसा चल रहा। और वो फिर उसके बाद उसने नेगोशिएशन भी नहीं किया। आपने नेगोशिएट करने की कोशिश की, उसने शॉल का बंडल डाला और आगे चल गया। वो क्या दे गया ये हमको समझ ही में नहीं आया। वो मेरे पूरे परिवार को अपनी एनालिसिस दे गया और हम उसको सत्य मानकर, ये क्योंकि मैंने तो जो मैं सुन रहा हूं, मैंने तो उसको फैक्चुअली सामने सुना ना। कश्मीर का ओरिजिनल व्यक्ति आया और वो बेचारा था, वो तो शॉल बेचने वाला था, वो तो बेचारा था ना, उसको क्या मालूम क्या है, वो तो सत्य बता रहा था। और ऐसे पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में तमाम तरह के स्टूडेंटों के एडमिशन, और ये उस समय सरकार ने रिजर्वेशन दिया था, ये सब चला। हमने जो मेन काम था वो था कि पिटीशन फाइल होने के साथ मीडिया का जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करना। तो हमने एक सेल अलग बनाई कि मीडिया से बात कौन करेगा भाई। फिर हमने कहा बुद्धिजीवियों वकीलों में बात कौन करेगा भाई। फिर हमने कहा कि पत्रकारों में या जो लीगल फ्रेटर्निटी है और तमाम तरह के फ्रेटर्निटी है, इनसे बात कौन करेगा, और इनके जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट कौन करेगा। हमने तमाम जितना हम लीगल फ्रेटर्निटी में पुराने एडवोकेट से बात कर सकते थे, रिटायर्ड एडवोकेट से, जजेस से बात कर सकते थे, और जिससे कर सकते थे, तमाम टेक्स्ट बुक लिखने वाले राइटर्स से बैठे, भाई ये आपने लिखा, इसका हमें सोर्स बताओ। तो उन्होंने करेक्शन करने शुरू किए। इसको करने में अपने को लगभग 10 साल लगे।
सरकार बैठी गई थी, सरकार का तो गठन ही, सरकार का गठन मैं कहता हूं कि जनसंघ की स्थापना ही इसीलिए हुई थी 370 की वजह से। तो वो तो तब से उसी एक ऑब्जेक्ट पर लगे थे, लेकिन एक बड़ी बाधा हमारे बीच में थी जो कि हमारी इग्नोरेंस थी। कानून था, कानून के अंदर सॉल्यूशन था, 370 में सॉल्यूशन था, दिख रहा था, लिखा हुआ था। और जब हम कह रहे थे कि इसमें सॉल्यूशन लिखा है तो लोग मानने को नहीं तैयार थे कि लिखा तो है लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि किसी ने कहा फलाना आर्टिकल 367 इसमें घुस जाएगा, किसी ने कहा 368 इसमें घुस जाएगा, किसी ने कहा वो तो राजा की वो जो एग्रीमेंट था वो उसमें घुस गया, किसी ने कहा वो तो जबरदस्ती कर लिया। ऐसी सारी चीजें, मेरा मानना है कि जुडिशियल फील्ड में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी करेक्शन की आवश्यकता है। हम अभी भी वो रिसर्चें नहीं दे पा रहे हैं, जुडिशरी को फैक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो फैक्टों की उनको आवश्यकता है जिसके बेस पर वो जजमेंट लिख सके। हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, हम स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्रता के बाद हमसे बड़ा उल्लास किसी को था नहीं, इसलिए अपने काम हम बोझ करा। और काम जिन्होंने किया वो बहुत सारे बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए। ये जो आपका प्रश्न है, मेरा मानना बिल्कुल साफ है। जुडिशरी को अगर हम पूरे फैक्ट देते हैं, और ऑनरेबल जस्टिस बैठे हुए हैं, ये फैक्ट है कि कोर्ट आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, कोर्ट आपसे टोटल फैक्ट मांग रहा है और कह रहा है फैक्ट और कानून जो आपके पास हो वो हमें दे दो, एनालिसिस तो हम करके ऑर्डर लिख ही देंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, हमको मालूम है कि ये गलत है, कोर्ट को भी मालूम है गलत है, लेकिन कागज कह रहा है कि गलत नहीं, न्याय नहीं हो पाया, लेकिन जजमेंट हो गया। तो न्याय पाने की जो प्रक्रिया है देश में, मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जो आपने कहा वो है पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी का पूरे देश में सही से स्थापना होना। मैं छोटी सी बात इसमें कहूंगा, जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? कोई एक्ट हमने अमेंड किया तो समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी निकालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या, कैसे निकालें? अब गोलकनाथ में उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट में आपने संशोधन कर दिया, ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद बड़ी बेंच बैठी, उसने कहा नहीं है, 11 की बैठी, उसने कहा कि अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। बड़ी बेंच बैठी, उसने कहा नो, यू कैन डू, बट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आ गई। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब हमने फंडामेंटल राइट में संशोधन किया या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या उस अमेंडमेंट की? तब हम कहते हैं व्हाट इज द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, क्योंकि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी तो पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री में ही बना रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अरब से उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन यहां रख देंगे। जिन लोगों ने नैरेटिव तय कर दिया कि आप ये वाला राइट वहां फ्रांस से लाए, ये वाला हम यूरोप से लाए, ये वाला अमेरिका से उठाया, ये ऑस्ट्रेलिया से उठाया, एक लिखा बड़ी सीरीज भी। क्या भारत के बेसिक स्ट्रक्चर, भारत की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में संसार के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा सकता है क्या? और अगर लिखने का प्रयास करेगा, जैसे शहजाद जी ने कहा कि अगर वो कहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो राष्ट्र विरोध करेगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी ही नहीं। हमारी पब्लिक पॉलिसी क्या है? महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला ही यहां सब कुछ है। हम उसको देवी मानते हैं, वो अग्रणी मानते हैं, हम उसके डायरेक्शन पर पूरे घर का मैनेजमेंट उसको सौंपते हैं और वो ही अग्रणी है। ये भारत की पब्लिक पॉलिसी है। इस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर आप कहेंगे कि हम 4 निकाह कर सकते हैं और 14 कर सकते हैं, तो ये भारत में आप ताकत की दम पर कर सकते हैं, लेकिन आप भारत के विचार के आधार पर, भारत की पब्लिक पॉलिसी के आधार पर चल नहीं सकते। इसलिए भारत की पब्लिक पॉलिसी क्या है इन रिगार्डिंग एनी लॉ, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, इसके जेनेसिस में हम सबको जाना पड़ेगा, तब आप न्याय पा पाएंगे, अदरवाइज आप जजमेंट पाते रहेंगे। ये सबको इतनी मेहनत करनी है। मैं
आपसे जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो हिंदू धर्म की जो न्याय के सिद्धांत है उसके संदर्भ में है कि उपनिषदिक विजडम, गीता की विजडम, यानी संविधान तो एक पुस्तक है जो लिखी गई है और बहुत विचारशील मनीषियों द्वारा लिखी गई है, उसका सम्मान है, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा माइल, क्या वो एक्स्ट्रा टच एंशिएंट हिंदू विजडम का भारत की न्याय व्यवस्था में कई जजेस में हम देखते हैं कि वो उद्धृत करते हैं गीता के श्लोक, कई जजेस हैं जो उपनिषद विजडम को कोट करते हैं सुभाषित, तो उस पर आपका क्या टेक है कि हम एंशिएंट ट्रेडिशनल हिंदू विजडम को भारत में न्याय व्यवस्था में लाने में किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, इस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता होती है। और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिबेट है वो भी कुछ ऐसा ही है कि जुडिशरी रोल इन प्रोटेक्टिंग सिविलाइजेशन हेरिटेज इन धर्म। जुडिशरी का बेसिक कंसेप्ट पहले आप अगर समझ लेंगे तो उस पर क्रिटिसाइज करने की गुंजाइश है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। हमारे यहाँ जो पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, हाँ, ये सब हजारों हजारों साल पुराने हैं, ये हम सब जानते हैं। ये किसी एक ऋषि ने, किसी एक विद्वान व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जगह लिखे गए। जो पुराना सिस्टम मुझको समझ में आया है, जैसा मैंने पढ़ा है, कि हमारे देश में ग्राम देवता, ग्राम के लेवल पे एक एंटिटी होती थी, उसमें सब कुछ होता था। हर ग्राम में एक विद्यालय भी होता था। जो विद्यालय ग्राम की जो सीमा होती थी उससे थोड़ा सा बाहर निकल के होता था, और उस विद्यालय का कोई प्रधानाध्यापक नहीं होता था, बल्कि कोई ऋषि संत महात्मा होते थे जो उसके इंचार्ज होते थे। उनकी अपनी शिक्षा की पद्धति थी, वो अपने कुछ नियम बनाते थे, और वही नियम उस गांव को, जिसको हम कानून कहते हैं, वो उसको गवर्न करते थे। और किसी किस्म का अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो या तो ग्रामवासी आपस में बात करके, जिसका हमारे यहाँ पहले से भी पंच प्रधान की प्रणाली चलती आ रही है, ग्राम के लेवल पर ही निपटा लेते थे। और अगर बात नहीं बन पाती थी तब जो है वो ऋषि मुनि के पास जाते थे और उनसे कहते थे सब शास्त्रों में क्या लिखा है वो आप हमें बताएं। और नॉर्मली ज्यादातर मामले वहीं निपट जाते थे। कभी इक्का दुक्का मामलों में कोई ऐसी बड़ी बात आती थी कि उसको राजा तक ले जाना पड़ता था। हमारी पुरानी पद्धति में न्याय को ईश्वर का कार्य माना गया है, और ये माना जाता था कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और क्योंकि और कोई दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता, वही फैसला करेगा तो लागू भी कर पाएगा क्योंकि उस पर शक्ति है, तो उसको ये माना जाता था कि न्याय का अल्टीमेट अधिकार राजा को है। राजा भी अपनी मर्जी से न्याय नहीं करता था, वो जो वहाँ पे धर्म के ज्ञाता लोग होते थे उसके दरबार में, उन लोगों से बात करके, उनसे सलाह मशवरा करके, और फिर धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही न्याय करता था। ये हमारी पुरानी परिपाटी थी, जिसमें किसी किस्म का ना एरिया कभी क्रिएट हुआ, ना कभी मुकदमे पेंडिंग हुए, ना तारीखें पड़ी, और मुकदमा पहली तारीख पर निपट जाता था। ऐसा हम लोगों ने हमेशा देखा। कम से कम इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि पुराने जमाने में बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे वाद इकट्ठे थे। इसके बाद बाहरी कुछ शक्तियों ने हमारे यहाँ पदार्पण किया, और जिसमें ज्यादातर लोग जो आते थे वो लूट के चले जाते थे। यहाँ रहने वालों में कुछ लोग जो बाद में आए, उन्होंने अपनी परिपाटी यहाँ पे चालू की, और उन्होंने यहाँ पे न्याय की व्यवस्था में जो उनका पंथ था, जो उनका विश्वास था, उसकी जो परंपराएं थी, जो उसके नियम थे, उसको लागू करना चाहा, और उसको किया भी काफी हद तक। उसका एक कारण क्या था कि सनातन धर्म जो है उसमें किसी प्रचार प्रसार का कोई काम नहीं था। सनातन ने कभी नहीं कहा कि हम लोगों को प्रचार करें ताकि आप सनातनी बने। यहाँ तो ये माना जाता था पैदाइश को पैदा हुए हैं तो आप सनातनी हैं। लेकिन बाद के जो जितने पंथ और विश्वास आए, उन सबको प्रचार प्रसार के बिना उनकी बढ़त नहीं हो सकती थी।
और उन सबने वो सारी परिपाटी अपनाई। तो यहाँ भी ऐसा था कि मुस्लिम काल में यहाँ तक था कि अगर किसी हिंदू ने मर्डर कर दिया है तो उसे फांसी की सजा मिलेगी, फांसी मतलब मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन अगर उसने हिंदू ने हिंदू को मारा है तो वो कुछ मुआवजा देकर छूट सकता है। हिंदू ने अगर मुसलमान को मारा है तो उसे मृत्युदंड निश्चित मिलेगा। अगर मुसलमान ने हिंदू को मारा है तो वो भी मुआवजा देकर छूट सकता है। और एक और बढ़िया बात है कि अगर कोई हिंदू अपने को मुसलमान बना ले, कन्वर्ट कर ले, और फिर वो अगर मुसलमान को भी मारे है तो वो भी मुआवजा देकर छूट सकता था और उससे फिर मृत्युदंड नहीं होता था। तो ये एक तरीका था कन्वर्जन का। एक और भी तरीका था कि जो खेतों पे जो कर लगता था, अगर मुसलमानों से मान लीजिए 1 रुपया उस जमाने में 100 रुपये ऐसा पैसे किसी से लेना है, 100 पैसे की फसल हुई तो मान लीजिए मुसलमानों से 5 पैसे लिया तो हिंदुओं से 85 पैसे 90 पैसे लिए जाते थे। गरीब किसान जो ये सब नहीं कर पाता था वो कन्वर्ट कर लेता था। इसीलिए आप देखिए कि जो एक मेजॉरिटी है, जो हम कहते हैं ना कि वो गरीब में क्या है, वो इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि कन्वर्जन भी उन्हीं का है। लेकिन सनातन की जड़ें बहुत मजबूत थी। इस देश की सांस्कृतिक, इस देश की हर किस्म का अगर कोई आधार है तो सनातन है, इसमें कोई बुरा नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि सनातन तब से है जब से कोई उसका ओर छोर नहीं बता सकता, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो ये सनातन कितने सब चीजों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम काल में कानून पद्धति बदली, उसमें काजी नियुक्त हुए, अदालतें बनी। अदालतों में क्या था, काजियों को वैसे पैसा नहीं दिया जाता, वो जो मुकदमा तय करते थे उसी में उनको नजराना शुक्राना मिलता था। जो जिनके मुकदमे तय करते थे वो उनकी फीस हो जाती थी। तो एक तरीके से न्याय का थोड़ा सा व्यापारीकरण शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने इसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जब धार्मिक मामले आए तो उसमें हिंदू डिस्प्यूट हिंदू शास्त्रों के अनुसार तय करने के लिए उन्होंने कहा कि चौहक करेंगे। और उसके लिए वो क्या करते थे कि पंडित एक्सपर्ट नियुक्त करते थे, जो अदालतों को सलाह देते थे कि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है और आप ऐसा कर सकते हैं। अब इस सलाह में जो सलाहकार है उसकी क्रेडेंशियल्स और उसके क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो सलाहकार खुद कितना जानता है, कितना समझता है, क्या बताता है, उस पर फैसले उस जमाने में हो जाते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम डिस्प्यूट अगर होते थे तो मौलवी एक्सपर्ट अपॉइंट होते थे, वो सलाह देते थे और उनके अनुसार हो जाता था। ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम ऐसा जो धार्मिक मामलों में था इसको अपनाया, लेकिन बाकी मामलों में जो इंग्लैंड में उनकी न्याय प्रणाली थी उसको यहाँ पे लागू कर दिया और उसी को ज्यादातर उन्होंने चलाया। ये प्रथा हमारे पास 1947 जब तक हमें आजादी मिली तब तक बदलती चलती रही, आप सब जानते हैं। 1950 में जब हमने कानून अपना संविधान लागू किया तो आप सब जानते हैं संविधान हिंदुस्तान का, भारत का मूल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये भी बहुत सारे संविधानों का एक जोड़ तोड़ है और बहुत सारे दूसरे देशों के जो नियम कायदे कानून थे उनको मिला के बनाया गया। और स्थिति ये बनी कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसके काफी सब्सटेंटिव प्रोविजंस एज इट इज बने रहे और वही कानून की जो बेसिक पद्धति थी वो चलती रही। हमने भी इसमें कोई बहुत चेंज करने की कोशिश नहीं की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे अभी आपको बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा गया, लेकिन हमने धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा कि कौन से कानून लागू होंगे उसके बारे में। हमारे यहाँ इससे पहले अलग अलग तमाम ऐसे विधि ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तमाम कानून के नियम बनाए। नारदा का है, पाराशर का है, करीब 5-6 बड़े बड़े स्कूल थे जिनके सारे कानून पूरे डिटेल में बने हुए हैं और ये ब्रिटिशर्स को मालूम था कि बने हुए हैं। कुछ किताबों में उन्होंने कोट भी किया है और एक किताब है जिसको मैं जानता हूँ, उसमें ये लिखा गया है
कि हिंदुस्तान की असली शक्ति यहाँ के ग्राम देवता में बसती है, और अगर हम यहाँ की ग्राम देवता के कंसेप्ट को खत्म कर दें और इसको नष्ट करें तो हिंदुस्तान में हम अपना शासन ज्यादा लंबे समय तक चला सकते हैं। और उसी परिपाटी से काम हुआ। शिक्षा पद्धति को भी उसी तरीके खराब किया गया, लेकिन न्याय व्यवस्था हमारी इंग्लैंड वाली चलती रही, 1950 के बाद भी चलती रही। 1950 के बाद जब हमारे संवैधानिक कोर्टें आपको बने तो वो ज्यादातर धर्म का शास्त्रों के अनुसार फैसले देने में थोड़ा सा हिचकते थे, और वो धर्म शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका मानना यह था कि इससे संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हमारे नए बन के आए हैं उसका हनन हो जाएगा। लेकिन इस बीच में एक घटना घट गई। आजादी के बाद संविधान लागू होने से थोड़ा सा पहले एक डिस्प्यूट हमारे यहाँ अयोध्या में चल रहा था, राम जन्मभूमि का। आप सबको मालूम है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पे जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर मूर्ति का ये हुआ कि साहब इसका उदय हो गया है। और ये घटना वहां के एक सिपाही ने कहा कि हाँ साहब, मैंने रात को देखा कि बड़ा भारी प्रकाश हुआ और अचानक से जो है वहां पे रामलला प्रकट हो गए। तो वो भाई प्रकट कृपाला करके उसी से तब से बात करते हैं। ये घटना घटी, इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चौंकाया, भारत सरकार को चौंकाया। उस जमाने के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि आप तुरंत जो है मूर्तियों को हटाइए और इसको जो है रेस्टोर करिए। मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि आप हटाएं, लेकिन उस जमाने का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक एसडीएम था जिन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया कि साहब हम किसी हालत में यहाँ से हटा नहीं सकते, वरना और मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक हुआ कि मुख्यमंत्री स्वयं अयोध्या गए थे इस कार्य को पूरा करने के लिए। उनको भी उस जमाने के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बॉर्डर पर रोक दिया था। उन्होंने कहा साहब अगर आप अयोध्या के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है जो हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आप उस समय वापस चलिए। और वो वापस लौट गए। अयोध्या में बाकायदा इस चीज की तारीख, समय वगैरह सारी चीजें आपको तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलेंगी, समझा। जब ये घटना घट गई तो क्वेश्चन ये हुआ कि अब पूजा कैसे हो। तब न्यायपालिका का सबसे छोटा अधिकारी, जिसको हम कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसकी अदालत में एक मुकदमा दायर हुआ 1950 के जनवरी में, और ये कहा गया, वकील ने कहा कि साहब मेरा पूजा का अधिकार है और यहाँ लगातार पूजा होती है, और मुझे क्योंकि जैसे ये घटना घटी तुरंत 145 की धारा लगा दी गई, अटैचमेंट कर दिया गया, तो सब चीजें रोक दी गई थी। तो उसने कहा मुझे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। उस छोटी सी अदालत ने इतनी हिम्मत की, ना उसने संविधान देखा ना कुछ देखा, उसने कहा ठीक है आपको पूजा का अधिकार दिया जाता है और आप पूजा लगातार करते रहिए, और यहाँ पे और किसी दूसरे ग्रह की पूजा नहीं होती। ये इस पूरे मामले की जड़ है। अगर 22-23 दिसंबर की घटना ना घटी होती और जनवरी में 15-16 जनवरी 1950 का शायद आदेश गया था, मुझे याद पड़ता है, अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन जैसे छोटे से जुडिशियल ऑफिसर ने ये हिम्मत ना दिखाई होती, तो आज आप अयोध्या में राम मंदिर देख नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। की कहानी में जो पुलिस ऑफिसर था जिसने दिव्य दर्शन देखे प्रभु श्री राम प्रकट हुए, वो अब्दुल बरकत के नाम पर जो सियासत की हरकत करते हैं वो उनकी चक्षु अभी तक नहीं बताइए। बात सही है। वो सिपाही एक मुस्लिम फैलो था, उसने ये कहा था। तो 1950 में हो गया। इसके बाद मुकदमे चलते रहे, वो घटना वैसी की पूजा होती रही, लेकिन उस मामले को लोगों ने ज्यादा तूल नहीं दिया और वो ऐसे ही पड़ा रहा। हमारी बड़ी अदालतें शास्त्रों को, पुराणों को, इन सबको उद्धृत करती जरूर थी, वो भी धार्मिक मामलों में, बाकी में उनको फॉलो नहीं करते थे, न उनके अनुसार कोई फैसला होता। 1900 जब ये शाहबानो मैटर हो गया, जैसा भी आपको बताया गया,
इसके बाद में थोड़ी सी ये विवाद व्यवस्था बनी कि भाई क्या स्थिति ये है कि अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं, और अगर आप कट्टर मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो आप सेक्युलर हैं। क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सीधा प्रश्न। अगर आप ईमानदारी से अपना धर्म हिंदू धर्म पालन करते हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। लेकिन अगर आप पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, पूरी तरीके से इस्लाम का पालन करते हैं, तो क्या आप सेक्युलर हो गए? अगर आप क्रिश्चियन हैं, हर बाकायदा चर्च जाते हैं, उसकी पूरी प्रथा को फॉलो करते हैं, तो आप सेक्युलर हो गए। ये तो तरीका, इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी को दबाया जा रहा है। तो 1984 और ऑनवर्ड आप लोग जानते हैं, एक मूवमेंट हुआ जिसका विश्व हिंदू परिषद ने इसको लीड किया और लोग इससे जुड़ने लगे। मैं उस जमाने में नया नया वकील बना था, मुझे आज भी याद है, लोग ये कहने में शर्माते थे कि मैं हिंदू हूं, लेकिन जो मुस्लिम होते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मुस्लिम हैं, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी दिखाते थे। लेकिन हिंदू को ये कहने में हिचक लगती थी कि कोई मुझे फंडामेंटलिस्ट ना समझे। आप सोचिए, ये 1984, 85, 86 तक की बाकायदा चीजें थी, और उसके बाद भी धीमे धीमे चल रही है। लेकिन जो मूवमेंट हुआ उसने ये परिवर्तन किया कि धीमे धीमे लोग जुड़ने लगे। और ये जुड़ने वाले कौन थे? ये सब लोग ग्राम स्तर के वो लोग थे जिनको आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। बाकी हम तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन पर जैसी जगह में डिस्कस कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं और घर चले जाते हैं, समझते हमारा काम हो गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर किसी ने काम किया तो वो गांव का आदमी था, वो साधारण आदमी था, वो आम आदमी था, जिसने बाकायदा उस मूवमेंट से जुड़ के हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होके अपनी ताकत दिखाई कि हम राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि में बदलने के लिए, बनाने के लिए, रेस्टोर करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और कि हम चाहे तो एक मिनट पूरा करता हूँ। मैं इलाहाबाद में था, मैंने देखा है सड़कों पे सैकड़ों लोग थैला हाथ में लिए, बैग पर कमर पर पीठ पर उठाए, बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। मतलब भीड़ की भीड़ चलती दिखती थी उस जमाने में, 86, 87, 88 में, 89 ये स्थिति थी। लेकिन हम लोगों का कंसेप्ट जो जिनको हम सभ्रांत और सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी कैडर कहते हैं, है ना, उन लोगों की सोच में उतना परिवर्तन उस समय नहीं आया। इसीलिए अदालतों का भी रुख उस समय उतना बदला नहीं। इस बीच में 1989 में ये क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने राम मुद्दे को दोबारा उठा दिया था, तो ये हुआ कि अदालत का मामला जो पेंडिंग है बिना तय हुए आगे काम चलेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक एप्लीकेशन दी गई कि जो मामले अयोध्या की सिविल कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको हाईकोर्ट यहाँ ट्रांसफर कर ले और उनको सुन ले, ताकि उनकी सुनवाई थोड़ा जल्दी हो जाए। तो 2 जजेस की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑर्डर किया कि वो सारे मैटर यहाँ ट्रांसफर हम करते हैं। और उसी समय उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि मामला क्योंकि बड़ा है और इसमें दोनों हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, तो इसको एक लार्जर बेंच सुने। तो चीफ जस्टिस ने हाँ किया, 3 जजेस की बेंच बना। उसके बावजूद भी ये डर था कि 1994 में जब ये घटना तो 1992 की घट गई, तो 1994 में राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस किया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या ये भूमि है, विवादित भूमि, ये राम जन्म स्थान है या नहीं। सिर्फ एक लाइन का रेफरेंस था। और उस जमाने की गवर्नमेंट का ये सोचना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जन्म स्थान है तो हम ये हिंदुओं को दे देंगे, और ऐसा उनको दोनों पक्षों ने कहा भी। और अगर सुप्रीम कोर्ट अदरवाइज तय करती है तो जैसा करेगी वैसा करेगा। कमाल की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को तय नहीं किया और रेफरेंस वापस कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, अरे भाई ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पेंडिंग है, इसको हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। समझा? अरे हिम्मत नहीं पड़ी ये मुद्दा, वरना उसी जमाने में वहां से तय हो जाता और हमको 25-30 साल इंतजार करना। इसके बाद भी मामला हाई कोर्ट में भी चलता रहा, कोई तय करने को तैयार नहीं था। 2008 में जब इस बैंक में मुझको नॉमिनेट किया गया, तो मेरे चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि मैं आपको इस बैंक को नॉमिनेट करना चाहता हूं, और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरे हिसाब से एक केस है और इसको तय करना चाहिए, और अगर मैं नॉमिनेट होगा तो मैं इसको तय कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे आपको मालूम है कितना संवेदनशील। हाँ, और इसमें पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। मैंने कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए जज मेरा काम है मुकदमा तय करना, और मुझे मुकदमा तय करना चाहिए। तो जस्टिस हेमंत गोखले साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, आई ऑल्सो थिंक लेट इट बी डिसाइड, और इस तरीके से मैं नॉमिनेट हो गया। उस जमाने में भी स्थिति ये थी, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ, जो कोई ये सुनता था कि हम ये तय करेंगे कि ये जगह भगवान राम का जन्म स्थान है, वो मेरा मजाक बनाता था। कहता था जिसके बारे में ये कोई नहीं जानता कि राम मिथ है या हिस्टोरिसिटी है, कोई कहानी है या कथा के कैरेक्टर है या वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है, उनका हम जन्म स्थान तय करेंगे कि जन्म स्थान है कि नहीं। आप अपने जन्म स्थान के बारे में 3-4 पीढ़ी के बाद में नहीं पता लगा सकते कि ये जगह हमारी जन्म स्थान थी कि नहीं। खासतौर पर अगर मकान का रेनोवेशन हो गया, समझ गया, तो ये स्थिति थी। फिर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस मुद्दे को तय करके ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि ऐसा भी मुद्दा तय हो सकता है, और हम सिविलाइजेशन हेरिटेज को बचा नहीं सकते। पूरी दुनिया में ये इकलौता उदाहरण है जहां पर एक धार्मिक मुद्दा अदालत से तय हुआ, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार तय हुआ, और न पत्ता खड़का न खरोंचाई। जबकि 2010 में माहौल बिल्कुल अलग था, सारी सरकारें अलग थी, और अल्टीमेटली 2019 में वही माहौल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। अब स्थिति ये है कि देखिए थोड़ा आगे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे आ रहे हैं। सबरीमाला मैटर में ह्यूमन एम्पावरमेंट को देखते हुए उन्होंने एक जजमेंट दिया कि भाई यहाँ पे सबको जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि धार्मिक प्रथाएं कुछ अलग हो सकती है, मान्यता अलग हो सकती है। लेकिन अच्छा, जलीकट्टू के मैटर में उन्होंने कहा ये एनिमल के साथ क्रूएल्टी है, लेकिन एक दूसरा मुकदमा हुआ कि एक पर्टिकुलर दिन करोड़ों जानवरों की बलि बड़े निर्मम तरीके से दी जाती है, उस पर कुछ नहीं कहा गया। तो आज स्थिति है कि अब अदालतें आगे बढ़ने लगी हैं, थोड़ा हिचक रही हैं, लेकिन समय दीजिए, भरोसा रखिए, समय के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा प्रश्न एक मुहावरा है कि नास्तिकता पर, मैडम काफी हो चुका है इसका जिक्र, मैं बाद में करूं। नास्तिकता पर एक समाज चल सकता है, लेकिन अन्याय और जुल्म पर आधारित समाज नहीं चल सकता। तो शहजाद भाई जरा ये बताएं, ये बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आती है जब वो पीसीटीवी बिल और ये जो वक्फ बोर्ड बिल जैसे बिल लेकर आते हैं कि कोई भी समाज जुल्म पर नहीं चल सकता। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो सरकारों का पूरा एक उनकी सोच रही, और पर्टिकुलरली गांधी फैमिली की, वो यही थी कि किस प्रकार से जो हमारी सनातन संस्कृति और विरासत है इसको दबाया जाए और हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो कोई भी कानून उस समय बने या जो कोई भी कानून लागू हुआ, वो सारी चीजें ऐसी थी जिसमें कि एंटी हिंदू एलिमेंट उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। एक जगह पर तो नेहरू जी ने कहा भी है कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज अ प्रॉब्लम। मतलब कि माइनॉरिटी को एक फ्री पास, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या है। अगर हमारी आबादी 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो क्या हम माइनॉरिटी है क्या? तो फिर जैन क्या, मतलब वैसे तो अलग नहीं है, परंतु पारसी क्या हुए, माइक्रो माइनॉरिटी, फिर ईसाई क्या हुए, सिख क्या हुए, वैसे सब एक ही है। दूसरी बात यह है कि पूरा ओरिएंटेशन था कि किस प्रकार से हिंदुओं को, सनातन को दबाया जाए। तीसरी बात यह है कि हम पर एक आर्टिफिशियल वेस्टर्न थॉट प्रोसेस थोपा गया। अक्सर ये समझा जाता है कि हम सिविलाइज हैं क्योंकि हमारे पास संविधान है। एक्चुअली हमारे पास संविधान है क्योंकि हम सिविलाइज थे, हमारा सिविलाइजेशन फर्स्ट।
क्या अगर 1 मिनट कल्पना कीजिए, अब इसको काटने की क्षमता है लोगों में, कांग्रेस वाले को पहले ही बोल देता हूँ, सुप्रिया श्रीनेत जी फुल टाइम मत कर देना, काट देंगे क्लिप। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर इस देश में संविधान नहीं होता बाबा साहेब का, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बैठा हिंदू है वो किसी और मजहब के लोगों का जीना जो है मुश्किल कर देता? नहीं करता, क्योंकि यहाँ के हिंदू का डिफॉल्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ही कोएग्जिस्टेंस है। तो हमारे संविधान ने केवल वही चीजें स्पष्ट की है, बोली है, जो हमारे सिविलाइजेशन में पहले से थी। जैसे कि आप बताइए कोई और ऐसा मजहब है क्या जिसमें देवी या शक्ति की आराधना होती हो? आप कोई भी और रिलीजन पिकअप कीजिए, कहीं पर भी नहीं है। और यहां पर तो हम सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, ये हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और इसमें कोई हिंदू नहीं, ये हमारा सिविलाइजेशन है। इंडोनेशिया के भी लोग जो है अपने सिविलाइजेशन और कल्चर से नहीं, बहुत से मेरे मुस्लिम मित्र हैं जो अभिवादन ही राधे राधे करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि मजहब बदलने से आपका सिविलाइजेशन और आपका कल्चर नहीं बदलता। अगर राम राम नहीं करेंगे तो क्या औरंगजेब करेंगे? अब सुधांशु जी आ गए कि उनका सेशन आने वाला है? सुधांशु त्रिवेदी जी का कल है। सुधांशु जी का ही एक मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था बहुत सुंदर तरीके से। 2 लोग हैं, दो परिवार है। एक परिवार है राम और भरत का, कि राम जी पर कोई तकलीफ आती है तो भरत खड़ा रखकर राम जी की जो है उनके खिलाफ कुछ काम नहीं करता, उनकी बातों को आगे बढ़ाता। और दूसरा परिवार है औरंगजेब और दारा सिखों का, कि एक भाई दूसरे भाई का गला काटकर बाप को प्रस्तुत करता है, जिसको जेल में बंद किया हुआ है। अगर कोई यहाँ पर अब्दुल हो या यहाँ पर कोई ओम हो, आप दोनों अब्दुल और ओम से पूछे कि घर में राम जैसा बेटा चाहिए या औरंगजेब जैसा, अब्दुल भी बोलेगा राम जैसा बेटा चाहिए, भरत जैसा बेटा चाहिए। कौन बोलेगा औरंगजेब? हमारे संविधान में जो कहते हैं ना कि देखिए कम्युनल है, कम्युनल से अगर आप हिंदू की तरह आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, तो आप कम्युनल हो जाते हो। हमारी जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसमें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे सिख गुरु, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी तस्वीर थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म की जीत है वहीं पर जो है, जहां धर्म है वहीं पर जीत है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी धर्म से अलग नहीं हट सकते थे, पर ये आर्टिफिशियली हम लोगों पर, हिंदू समाज पर ये भार डाला गया कि सेकुलर होना है तो केवल हिंदू को होना है, कानून बनना है तो केवल हिंदू के खिलाफ कानून बनना है। और इस ओरिएंटेशन से 60-65 साल तक काम चला। पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज इन पुरानी चीजों को और इन गुलामी की मानसिकता से, इस कम्युनलिज्म की मानसिकता से हम दूर हट रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के कानून एक के बाद एक समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। एक छोटा सा प्रश्न कि अगर हिंदू समाज आज की शासन व्यवस्था जो कि हमारे उन्मुख है, हमारे अनुकूल है, तो प्रैक्टिकल प्रायोगिक पॉइंट्स क्या है जिसमें हिंदू समाज हमारी आज की शासन व्यवस्था को संबल दे सकता है? प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं देश भर में मतलब हर दूसरे तीसरे दिन किसी मंच पर रहता हूँ और मैं सबसे पूछता हूँ कि आज का जो जज है, आज का जो कलेक्टर है, आज का जो ऑफिसर है, वो किसका बच्चा है? हमारा है। जिससे हम ये कह रहे हैं कि वो सीट पर बैठकर ये गड़बड़ कर रहा है और इंटरप्रिटेशन का नरेशन बदल रहा है, वो किसका बच्चा है? कहां से? हमारा भाई था, हमारा चाचा था, हमारा ताया था, हमारा बाबा था, हमारा बेटा था। तो इसकी जिस्ट में ये है कि हम उसको सही संस्कार नहीं दे पाए, जिसकी वजह से एक चाकू जिसको क्या करना चाहिए तो वो क्या कर सकता है। कानून बनाकर रख देने से, बाबा साहब भी कहते थे, कानून बनाकर रख देने से उसका इंप्लीमेंटेशन सही होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके लिए समाज को होमोजीनियस होना चाहिए। तो जो मैं समझता हूं कि देश में वातावरण है, सरकारें करना चाहती हैं और सरकारें कर रही हैं,
सरकारें कर रही हैं। मैं 3 चीजें करके आया हूं, 370, CAA और वक्फ, और तीनों पर सरकारों ने एक्शन लिया। केवल हमारे काम करने की आवश्यकता है कि क्या हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम इन्वॉल्व हैं तो परिणाम सरकार, आज की सरकार देने को तैयार है और दे। तो मुझे लगता है कि हमारा सब प्रैक्टिकली जाना है। ब्रीफली एक लास्ट, मतलब कि आप तो खुद लॉयर हैं, आप, मैं डॉक्टर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप किसी लॉयर की मदद भी कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। लॉयर और डॉक्टर ने दोनों हिंदू है ये समझ जाइए, मुझे लगता है सारा काम हो जाएगा। Yeah, that's very nice. सर भविष्य क्या है? ये जो लीगल लेंस जिससे हम अनस्टॉपेबल भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आप how do you see the future unfolding in the next 10 years or so? I think 10 वर्ष क्या शुभ समाचार हमारे देश के लिए लाएंगे, उसमें जरा। और एक और सर, बहुत सुनते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मेरे जीवन का अनुभव ये कि 86, 87, 88 का था जब ग्राउंड लेवल पे काम करके लोगों को लाया जा रहा था। अयोध्या लोग आ रहे थे और लाखों लोग आए। और एक जमाना अभी 2025 का है जब ना कोई इनविटेशन था, ना किसी को बुलाया गया, और 66 करोड़ से ज्यादा लोग। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आम आदमी, गांव का आदमी और साधारण आदमी ही था। हर वो बड़ा जिसको आप हु इज हु कहते हैं वो वहां उपस्थित था। क्या अंबानी, क्या अडानी, क्या हमारे प्रधानमंत्री, 7 मुख्यमंत्री, 7 राज्यपाल, 190 जजेस, जो एक मोटी फिगर गवर्नमेंट बताई है, 190 जजेस, जिनमें सुप्रीम कोर्ट जजेस भी थे, ये सब कुंभ में नहाए हैं। समझा? तो सोच में परिवर्तन आया है। जब सोच में परिवर्तन आता है तो वो प्रयासों में भी दिखाई देता है, वो आपके काम में भी दिखाई दे सकता है। हाँ, थोड़ा समय की देरी हो सकती है। उसकी दिक्कत क्या है कि देखिए अभी हो क्या रहा है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो बड़ा इंग्लिश है। 2017 में मैं कॉन्फ्रेंस में मेंबर था। उस जमाने में हिंदुस्तान में जिला कचहरी में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग थे। आज 2025 में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मतलब यह है कि मुकदमे तय नहीं हो रहे। तय होने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप अच्छे लोगों का अपॉइंट करें। इस पे अपॉइंट न करें कि कौन किस वर्ग से है, कौन किस जगह से है, कौन किस भाषा का है, किस प्रांत का है, कहाँ का है। जो मेरिटोरियस है, जो काम कर सकते हैं, जिनमें क्षमता है, उनको अपॉइंट करें और उनको काम करने को दें तो काम होगा। आज हम उम्मीद कर रहे हैं, आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक होगा, चीजें सुधरेंगी। और मैं तो हमेशा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आशावादी हूँ, आप लोग भी वैसे बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को, बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस को। कोई प्रश्न होता है हमारे पास समय नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कैटरी जी प्लीज मेसेज दे दीजिए। ग्रुप फोटो ले लीजिए।